What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 1st of July, and today is a very important day because today is the day where the new RBI rules for financing trading activity of prop desks and brokers go live. So आज से prop desks and brokers को जो funding देते थे banks and उनके लिए जो BG दिया जाता था, this BG now will have to be fully backed by collateral and उसमें भी 50% it has to be backed by cash component. So this is going to hit the volumes. This is going to hit the business of prop desks and the brokers, especially those who are heavily into market making and arbitrage trading. So definitely volumes कम होने वाला है, उनका उस part of the business काफी ज़्यादा affect होने वाला है. So it's almost like a body blow for them and इसका impact options volume में भी आने वाला है. But options volume पे इसका जो impact है एकदम directly आपको नहीं दिखने वाला है, एकदम कल से आपको नहीं दिखने वाला है, धीरे धीरे करके over the course of next few months आपको दिखने वाला है. So already the margining system is one of the highest in the world. हमारा जो span and exposure margin है, it's one of the highest in the world and already STT को बढ़ाया गया है, charges को बढ़ाया गया है and on top of that अगर volumes कम हो जाता है, liquidity dry up हो जाती है and bid ask spread wide हो जाता है तो then that is going to increase the cost for the traders further. सो आपको जो बैक टेस्ट पे जो 0.51% स्लिपेज के साथ आप बैक टेस्ट करते हैं, नाउ इट विल नीड टू बी इंक्रीज टू हायर नंबर्स टू अकोमोडेट फॉर द लोअर लिक्विडिटी, द लोअर वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज स्प्रेड्स. All that said, today is the day where this new rule goes live. Let's come back to the markets. So today the markets opened pretty flat, 23,900 के आसपास markets खुलता है. So for the first 3 hours, the markets was in a proper uptrending move, and after that, the next 3 hours, the markets went into a silent consolidation. And today, after a really long time, we saw Sensex straddle open with practically no overnight crush. कल 670 के आसपास straddle close हुआ था, आज 650 पे straddle open होता है with minimum overnight crush, and as the market started to head higher, there was a linear considerable decay in the straddle premiums, especially after 12 o'clock. There was absolutely no delta move, plus there was a linear crush of almost 150 points. So after a long time, option writers must have had a sigh of relief, and straddle close हुआ है 450 के आसपास, which means that tomorrow again we are going to be opening somewhere around 350, which again is going to make expiry tricky for the option writers. But my hunch is that tomorrow's expiry is going to be slightly less volatile. ऐसा नहीं कि आप सुबह आके straddle और strangle ठोक दोगे तो आपको directly linearly पैसा मिलेगा शाम तक, ऐसा नहीं है. But relative terms पे the volatility will be relatively low because last 2-3 expiries have been really volatile and it has been really tricky. So कल का जो expiry है मेरे हिसाब से थोड़ा कम वोलेटाइल रहने वाला है. सो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी. सो ऑलराइट, डेली चार्ट पे you can see that the markets are still hovering around 24,000 levels and काफ़ी दिनों से almost 15 trading session से markets एक छोटा सा 400 point की consolidation range में फंस चुका है. So once the market breaks out of this range, either 24,200 के ऊपर या 23,750 के नीचे अगर market close देता है daily close, then expect some amount of momentum in either direction. So my guess is that 70% chance है जो market है ऊपर जाने का जो mood में है, because markets ने मल्टीपल टाइम्स कंसोलिडेशन किया है एंड लोअर लेवल्स पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स को एक सपोर्ट मिला है एंड इंस्टीट्यूशंस हैव कम हेवीली एंड सपोर्टेड द मार्केट्स. बट अगेन वन थिंग इज दैट यूएस एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वापस चालू हो चुका है. यूएस हैज स्टार्टेड टू अटैक ईरान एंड ईरान आल्सो काइंड ऑफ गोइंग बैक ऑन इट्स deal agreement and what not. We never know, because all it takes is one night to ask for the things to actually escalate beyond everyone's control. And as of now things look under control because वहाँ पे जो भी न्यूज़ आ रहा है मार्केट्स पूरा डिस्काउंट कर चुका है. until unless जो लास्ट 2 महीने में हुआ है उससे बढ़कर कुछ अटैक हो जाता है या उससे बढ़कर कुछ एस्केलेशन नहीं होता है, तब तक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट्स are in a state to absorb all those shocks. But again, as I said, 23,750 के नीचे अगर एक डेली क्लोज मिल जाता है तो देन डेफिनेटली वी हैव टू टर्न आवर बायस इनटू बेरिश बायस, बिकॉज यहाँ पे एक बार मार्केट गैप फिल के लिए आएगा. बट अगर मार्केट इसके नीचे 23,700 23,600 के आसपास 2-3 दिन होवर करना शुरू करेगा तो देन द मार्केट्स विल शिफ्ट लोअर, द मार्केट्स विल हेड लोअर. सो लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो टुडे वाज अ स्मूथ डे, बिकॉज ज़्यादातर ट्रेंडिंग डेज में यूजुअली ऐसे रहता है कि आजकल ट्रेंडिंग डेज का जो पुल बैक्स होता है काफ़ी डीप रहता है, बट आज का ट्रेंडिंग डे का जो पुल बैक था इतना ज़्यादा डीप नहीं था. ट्रेंडिंग
हुआ मार्केट, थोड़ा बहुत पुल बैक आया एंड उसके बाद फिर से डे हाई को ब्रीच किया एंड फॉर द लास्ट 3 आवर्स द मार्केट्स वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन मोड एंड 24,000 के नीचे नहीं आया. ऑफ कोर्स ये जो लास्ट कैंडल है 24,000 के नीचे क्लोज दिया है, बट एवरेज क्लोज जो है 24,000 के ऊपर ही है एंड या मोस्ट प्रोबेबली वी माइट बी एबल टू सी अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल. सो कल के लिए एक्सपायरी का क्या ट्रेड करना है? वन थिंग इज the Sensex straddle, it will be opening somewhere between 320 and 350. अगर 350 के अगर ऊपर ओपन होता है तो then it's like a bonus, because आज मैं भी थोड़ा बहुत शॉक में रहा because today the straddle kind of opened without any overnight crush. Almost 900 and 650 के आसपास ही straddle open हुआ. Practically no overnight crush था. Almost 2 महीने से first time ऐसे चीज हमको देखने को मिला है. तो अगर कल भी overnight crush के बिना straddle open होता है तो yes, it's a good thing for the expiry traders and a bad thing for people who have carried positional exposure. ठीक है. सो अगर 300 के नीचे 930 के पहले स्टार्ट करता है ट्रेड करना तो देन बी लिटिल केयरफुल. डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स ट्रायंगल होने दो, स्ट्रैडल होने दो, ये थोड़ा ट्रेड करना थोड़ा ट्रिकी बन जाता है. आपको पूरा दिन मार्केट नचाएगा. ठीक है. सो कल के लिए प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स क्या करना है? वन थिंग इज दैट लाइक मार्केट्स ऑलमोस्ट 3 मंथली एक्सपायरीज, द निफ्टी लास्ट 3 मंथली एक्सपायरीज हैव बीन अराउंड 24,000 लेवल्स एंड लास्ट 3 वीकली एक्सपायरीज हैव आल्सो बीन अराउंड 24,000 लेवल्स. सो अगर मार्केट यहां पे खुलता है तो दिस वुड बी अ एक्सेलेंट ओपन. तो मार्केट अगर 76,950, 77,000 या 76,900 के बीच, इस 100 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो देन इट्स गोना बी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी. तब हम एक डायरेक्शनल ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जैसे 930 के पहले यहां पे ब्रेकआउट देता है तो देन वी कैन गो लॉन्ग एंड अगर यहां पे ब्रेकडाउन देता है देन ऑल्सो वी कैन गो लॉन्ग. तो अगर हम लोग मार्केट यहां पे ओपन होता है एंड बीच में 2-3 बार यहां पे फंस जाता है तो देन डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रेडिंग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स थिंकिंग दैट वो मार्केट पूरा दिन इसमें रहने वाला है. अगर फर्स्ट 90 मिनट्स, फर्स्ट 1.5 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स में अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है तो देन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट पोस्ट नून. तो अगर मार्केट इसके बीच ओपन होता है तो डेफिनेटली मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करूंगा. तो डेफिनेट जब तक ये इसके नीचे या इसके ऊपर आके देन वहां पे थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करता है तब तक मैं डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स प्लान नहीं करूंगा. आई वुड लुक फॉर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज ऑफ टुडेज लास्ट 3 आवर एक्शन. ठीक है. नाउ व्हाट इफ द मार्केट गैप्स डाउन? अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो देन अगेन सिचुएशन बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी. मार्केट के पास अच्छा खासा स्पेस है. यू कैन नोटिस दैट दिस विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट. 76,500 होने दो, 76,400 लेवल होने दो एंड दिस विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस व्हिच इज 77,000 level. So 76,600, 76,700 के बीच अगर मार्केट ओपन होता है तो ऑफ कोर्स 300 पॉइंट्स का अप मूव एंड 300 पॉइंट्स का डाउन मूव हम लोग झेल सकते हैं इफ वी सिट ऑन अ 76,600 स्ट्रैडल. बट आई वुडंट एडवाइज यू टू डू दैट बिकॉज आपका मार्क टू मार्केट है काफी ज्यादा स्विंग करता है ऊपर नीचे. सो दैट इज वाई मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल प्लान द डे फॉर मीन रिवर्शन. तो यहां पे इस पीक के आसपास इस जोन में बेसिकली ये जो 100 पॉइंट के जोन में मैं मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ट्राई करूंगा एंड एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू इनिशिएट अ मीन रिवर्शन ट्रेड अराउंड 77,000 लेवल्स. यहां पे आप डोंट ट्राई टू इनिशिएट अ मीन रिवर्शन ट्रेड हियर बिकॉज क्या है लाइक यहां पे 76,800 के आसपास मार्केट हो सकता है कि छोटा सा पुल बैक दे दे, बट 77,000 कॉल राइटर्स को एक बार तंग करने के लिए मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 77,000 तक आ सकता है. दैट इज वाई लाइक आई विल बी लुकिंग फॉर 77,000 लेवल्स एंड यहां पे ये जो 100 पॉइंट का बैंड है 76,500 एंड 76,400 के बीच, इस बैंड में मैं मीन रिवर्शन ट्रेड दोनों तरफ लाइक एक शॉर्ट ट्रेड एंड एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा. ठीक है. एंड ऑल्सो इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट एज आई सेड वी लुक फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन. अगर बड़ा गैप अप खुलता है, लेट मी जस्ट जूम आउट फॉर यू. अगर बड़ा गैप अप खुलता है, इसके ऊपर अगर बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से 77,300, 77,400 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली पुल बैक टुवर्ड्स टुडेज कंसोलिडेशन लेवल एंड अगेन 77,000 लेवल पे आने के बाद हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. अगर हम डेज के ओपन पे ही हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं तो देन अगर मार्केट पुल बैक के लिए आएगा देन यूड बी सिटिंग इन अ लॉट ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस. एंड यहां पे अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट मार्केट कंटिन्यूसली ये से ऊपर जाएगा या पुल बैक
बैक करके ऊपर जाएगा. सो वील बी रेडी फॉर बोथ द सिचुएशंस. वन थिंग इज दैट अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है एंड पुल बैक देता है तो देन ऑफकोर्स ये पुल बैक विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्चुअली इनिशिएट लॉन्ग पोजिशंस. एंड यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजिशंस इनिशिएट करना है तो बिकॉज टुमारो इज आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइटली लो वोलेटाइल काइंड ऑफ अ डे, कल आप पुट शॉर्ट्स कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस. नेकेड पुट शॉर्ट कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस. कल मैं रेशियोज प्लान नहीं करने वाला हूं बिकॉज आप देख रहे हैं कि लाइक लास्ट 4-5 घंटे में मार्केट्स का जो वोलेटिलिटी काफी सबसाइडेड है, काफी डोसाइल काइंड ऑफ अ मार्केट है. तो रेशियोज के लिए क्या चाहिए आपको, थोड़ा बहुत मूव चाहिए. तो अगर हमको कल अगर मार्केट मूव नहीं देता है तो बेसिकली आपका रेशियो जो है 0 पे क्लोज होने वाला है. बेसिकली आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ऑफकोर्स लॉस भी नहीं होने वाला है ज्यादातर, बट आपको प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है. सो दैट इज वाई अगर आपको कोई भी मीन रिवर्शन ट्रेड करना है तो आई वुड प्रीफर नेकेड ऑप्शंस बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है कि यहाँ पे, तो देन ऑफकोर्स लाइक वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, वी कैन यूज दिस रेजिस्टेंस एज सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई जोन एंड यहाँ पे भी हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. Whether we are going to open at this level or whether we are going to open here and for some reason like we head to this level, there is a possibility that अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो देन यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आए. एंड अगर इसको टेस्ट करने के लिए आता है तो यू कैन नोटिस दैट आज के तो कल के लो से लेके जो ये हाई तक ऑलमोस्ट 77,800 माइनस 76,100 ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का एक सिंगल डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल मूव आने जैसा होता है. तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे जो मीन रिवर्शन ट्रेड है ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है प्लस हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है. तो यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे मार्केट्स को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइटली रिलेटिवली लेस वोलेटाइल एक्सपायरी टुमारो. बट अगेन 2 o'clock के बाद 1:30 2 o'clock के बाद जो नॉर्मल गामा ब्लास्ट है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा. सो बी वेयर ऑफ पोस्ट 2 PM मूव्स. बट उसके पहले आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइटली लोअर वोलेटिलिटी, बट अगेन आई कैन बी रॉन्ग. ऑलराइट, सो आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.